dear kids, a very warm welcome to the English class. I am your English teacher Ranjana ma'am. I hope you all are doing good, you all are doing well, and you all are hale and hearty. In this current situation, we all are having online classes. So I do hope that you are enjoying the classes and you are watching the videos. If there is any problem, you have any doubt, you can always ask me in the online class the next day. So children, we are doing Unit 2 in English Grammar, which is consonants and vowels. We are doing Unit 2 and this is consonants and VOWELS, consonants and vowels. Okay? Now, as we all know, there are 26 letters in English alphabet. ये हम सबको मालूम है कि English alphabet में 26 letters होते हैं. And out of those 26 letters, 5 are vowels. 5 are vowels which are also known as famous 5 friends. We call them famous 5 friends also. Okay? 5 letters जो हैं, they are vowels. So we all know in ALPHABET, in alphabet 26 letters are there. Out of these 26 letters, some letters are known as vowels and some are known as consonants. Okay? Now, how many vowels are there? Vowels कितने हैं? Vowels are 5. These are also known as famous 5 friends. FAMOUS, famous. Famous मतलब जिसे बहुत जिसका नाम हो. Famous 5 friends. Okay? So, what are these vowels? They are A, E, I, O and U. And out of these 26 letters, 5 are vowels. Rest 21 are consonants. So, what are the consonants? B, C, D, F, G, H, then I is a vowel, J, K, L, M, N, then O is again a vowel, P, Q, R, S, T, then U is a vowel, V, W, X, Y, Z. So these 21 letters are consonants. Okay? ये अभी हम सबको पता चल गया. Now we were doing the exercises of this lesson. Okay? We have done first 3 exercises, that is circle the vowels from a given set of letters. उस पे से सिर्फ vowels को circle करना था. For example, X, V, I, P. Set of letters is given, 4 letters are given, and out of these 4, you had to circle the vowel only. So, which is vowel? I is the vowel, so we will circle I. Okay? And next exercise was circle the consonants.
So out of 4 letters, suppose these 4 letters are given, you have to circle only the consonant. So I is a vowel, U is a vowel, J is a consonant. So circle J. So this we had done. Now today we will do the exercise on page number 10 and 11. Okay. So you can open page number 10 in your grammar books. And we will start with exercise number 4. The fourth exercise is complete the words. Complete the WORDS words. WITH with CORRECT, correct? VOWELS vowels, using USING, using THE the, HINTS hints, AND and, learn the SPELLINGS, learn the spellings too. Okay, in this what you have to do is you have to complete the words with correct vowels. That means the whole spelling is not given. पूरी स्पेलिंग नहीं दी है, आपको उस वर्ड को कंप्लीट करना है बाय यूजिंग करेक्ट वॉवल. करेक्ट वॉवल यूज करके उस वर्ड को कंप्लीट करना है. ठीक है. यूजिंग द हिंट्स. यूजिंग द हिंट. हिंट का मतलब होता है आपको एक क्लू देना, आपको एक आइडिया देना कि ये क्या वर्ड हो सकता है. वेदर इट इज द नेम ऑफ एनी एनिमल, किसी एनिमल का नाम है. नेम ऑफ एनी थिंग, किसी चीज का नाम है. इट इज द नेम ऑफ एनी फ्लावर, किसी फ्लावर का नाम है. और इट इज द नेम ऑफ एनी फ्रूट, एनी वेजिटेबल, किसी फ्रूट या वेजिटेबल का नाम है. ओके. सो हिंट का मतलब होता है एक आइडिया देना, आपको एक हेल्प देना. ओके. सो द होल स्पेलिंग इज नॉट गिवन. पूरी स्पेलिंग नहीं दी हुई है. इसमें आपको करेक्ट वॉवल भर के स्पेलिंग को कंप्लीट करना है विद द नेम, विद द हिंट. हिंट दी हुई है, एक आपको आइडिया दिया है, एक हेल्प दी है. उस हेल्प को देख करके आपको वर्ड को पूरा करना है. ठीक है. सो लेट अस स्टार्ट. फर्स्ट वर्ड इज okay. You have to fill in the vowels and the hint is this word is the name of a fruit. The hint which is given मतलब आपको हेल्प करने के लिए जो हिंट दी है, जो एक हेल्प दी है, जो वॉवल फिलअप करने के बाद जो वर्ड बनेगा, दैट इज द नेम ऑफ अ फ्रूट. वो क्या है? एक फ्रूट का नाम है. ओके. नाउ वॉवल्स मीन्स वी कैन फिल इट अप ओनली विथ ए, ई, आई, ओ एंड यू. वी कैन यूज ओनली दीज 5 लेटर्स. वॉवल्स से हमें फिलअप करना है. दैट मीन्स हम सिर्फ ये 5 लेटर्स ही यूज कर सकते हैं. नाउ नेम ऑफ अ फ्रूट क्या हो सकता है? ये फर्स्ट वॉवल इज ए, सो वी कैन स्टार्ट विथ ए. ठीक है. यहां पे अगर हमने ए लिखा, सो लेट अस सी. फर्स्ट वॉवल इज ए, दैट इज वाई आई एम स्टार्टिंग विथ ए ओनली. ठीक है. मैं ए से स्टार्ट कर रही हूं. अभी फर्स्ट वॉवल यहां पे ए लिखा. अभी नाउ लेट अस सी यहां पे कौन सा वॉवल आएगा. इफ आई राइट ए,
APPLA कोई वर्ड होता है? एप्पला, देयर इज नो फ्रूट. नेक्स्ट वॉवल इज E. APPLE एप्पल. तो आपका क्या हुआ? वर्ड बन गया APPLE एप्पल. वर्ड बन गया विच इज द नेम ऑफ अ फ्रूट. ठीक है, आपको ये दिस हिंट इज गिवन टू यू सो दैट इट बिकम्स इजियर फॉर यू टू कंप्लीट द वर्ड. आपको ये हिंट इसलिए दी है जिससे कि आपको ये वर्ड बनाना इजी पड़ जाए. ठीक है ना? सो फर्स्ट वर्ड इज कंप्लीट. दिस इज एप्पल, द नेम ऑफ अ फ्रूट. नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट वर्ड. सेकेंड इज and the hint is we use it in rain. That means जो भी ये वर्ड बनेगा, this is something which we use in rain. Okay? the word जो vowels fill up करने के बाद जो वर्ड बनेगा वो किसी एक ऐसी चीज का नाम है जिसे कि हम रेनी सीजन में बारिश होने पे यूज करते हैं. नाउ व्हाट आर द थिंग्स विच वी यूज व्हेन इट रेन्स? जब बारिश होती है तो हम क्या क्या चीजें यूज करते हैं? वी यूज अम्ब्रेला, हम छाता यूज करते हैं. अम्ब्रेला, वी यूज रेन कोट, ओके, वी यूज गम बूट्स. तो द स्पेलिंग इज, ये रेनकोट की स्पेलिंग तो नहीं है, ये रेनकोट की स्पेलिंग तो नहीं लग रही है. So this is the spelling of word. You can see the word and tell me. आप देख करके भी मुझे बता सकते हो. So this is the, we use it in rain. This is the spelling of umbrella. UMBRELLA. Okay. Children, the spellings which are given here. यहाँ पे जो भी spellings है, all the spellings are the ones which you know. सारी जो भी स्पेलिंग से जो भी वर्ड बन रहे हैं, ये सारे वर्ड्स आपको पता है, आप ये सारे वर्ड्स जानते हो एंड ऑल दीज स्पेलिंग्स आर नोन टू यू. मतलब ये वर्ड्स भी आपको मालूम है और सबकी स्पेलिंग भी मालूम है. ठीक है? सो वेन आफ्टर कंप्लीटिंग द वर्ड यू हैव टू लर्न द स्पेलिंग्स टू. व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ एप्पल? APPLE एप्पल. A फॉर एप्पल. U फॉर, जब हम अल्फाबेट्स पढ़ते हैं प्री प्राइमरी में तो हम लर्न करते हैं A फॉर एप्पल, U फॉर अम्ब्रेला, UMBRELLA अम्ब्रेला. ओके, नाउ द थर्ड वर्ड इज दिस इज अ पार्ट of our body. ये जो भी वर्ड बनेगा, this word is a part of our body. हमारी बॉडी का ये क्या होगा? एक पार्ट है. Now think of our body parts. Head, forehead, eyes, nose, ears, mouth, neck, chest, हैंड्स, आर्म्स. कोई वर्ड आ रहा है? कोई भी वर्ड नहीं आ रहा है. दिस बॉडी पार्ट स्टार्ट्स विद द लेटर F. अभी ये भी एक हिंट है कि दिस बॉडी पार्ट स्टार्ट्स विथ लेटर F. F से स्टार्ट होगा. सो अभी मैंने जितने भी बॉडी पार्ट्स के नाम लिए, इसमें से एक भी F से नहीं स्टार्ट होता है. द ओनली बॉडी पार्ट विच स्टार्ट्स विथ F इज फिंगर्स. जो हमारे फिंगर्स होते हैं, this is the only body part which starts with F. So this is FINGER. Finger. Okay? FINGER. Finger. Then fourth is P
Now the hint is, this is the name of a bird. The word which is given here is the name of a bird. Now think, P से कौन से bird start होते हैं? Peacock. So Peacock. Peacock में तो end में K आता है, so ये peacock नहीं हो सकता. Parrot. So Parrot. Parrot भी नहीं हो सकता है. Parrot में तो last में T आता है. Then what else? और कौन सी bird P से start होती है? We can think of pigeon. Okay? Pigeon. 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 So pigeon, this is, कबूतर को pigeon बोलते हैं ना? So this word is Pigeon. Pigeon. Now children, don't get confused. आप इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि पहले यहाँ पे Pigion होगा या Pigeon होगा. Remember, when we say the vowels A, E, I, O, U, okay? तो जब vowels को बोलते हैं तो vowel E comes before I. A, E, I, O, U. Okay? पहले क्या आता है? E आता है, फिर I आता है. But in the spelling, the vowel I comes before E. स्पेलिंग में vowel I पहले आता है. जब हम vowels को सीक्वेंस से बोलते हैं तो that is A, E, I, O, U. So पहले E आता है, E के बाद I आता है. But in the spelling of pigeon, the vowel I comes before E. Pigeon. Pigeon. Okay? Now fifth word is SCHL. We go here to study. I think this is very simple. ये तो सब बच्चे बता देंगे, फट से तुरंत बता दोगे. कहाँ हम पढ़ने जाते हैं? Where do you go every day? Of course, right now you are not going to this place. ये जो है ये जगह, ये पूरा आपके घर में ही आ गई है. What is this place? This is SCHOOL. We go here to study. स्कूल हम जाते हैं, पढ़ने के लिए जाते हैं. You can say कि अभी तो मैम we are not going to school. अभी तो पूरा स्कूल ही उठ करके आपका घर पे आ गया है. सारी टीचिंग घर से ही हो रही है, आप सारा काम घर से कर रहे हो. तो अभी आपका जो स्कूल है वो कहाँ आ गया है? घर पे ही आ गया है. So home is like your school also. So school is the place where we go to study. So I hope सबको ये करने में मजा आया. हिंट दी है, हिंट का मतलब है आपको हेल्प करने के लिए. अभी आप ऐसे सोच सकते हो कि ये कौन सा वर्ड होगा, ये क्या वर्ड होगा, बट द हिंट इज गिवन. मतलब आपको हेल्प करने के लिए कुछ एक हेल्प दी है. जैसे बता दिया कि ये वर्ड क्या है, नेम ऑफ अ फ्रूट. तो आप सिर्फ फ्रूट्स के ही नाम सोचोगे. वी यूज इट इन रेन. अभी आप जब सोचोगे कि ये क्या वर्ड हो सकता है, तो ये पता है कि ये कोई ऐसी चीज है जिसे हम बारिश में ही यूज करते हैं. ओके? पार्ट ऑफ आवर बॉडी. इसके लिए जब आप सोचोगे ये क्या वर्ड होगा, तो जितने हमारे बॉडी पार्ट्स हैं उसे आप याद करोगे. यू विल टेक द नेम्स ऑफ ऑल द बॉडी पार्ट्स. अगर नहीं पता है तो बहुत सारे वर्ड्स हम सोच सकते हैं. कितने वर्ड सोचेंगे? सो इसीलिए ये आपको हेल्प करने के लिए ये दिया है. ओके? नाउ नेक्स्ट इज same exercise, but in place of vowels we will complete the word with the help of consonants. We will complete the word by filling in consonants. हम कैसे करेंगे? consonants से fill up करके हम word को complete करेंगे. Okay? It's the same question. In place of vowels,
complete the word with correct consonants using the given hints. ठीक है, complete the words with correct consonants using the given hints. इसके पहले वाली एक्सरसाइज में हमने क्या किया था, हमने वॉवल से फिलअप करके वर्ड्स कंप्लीट किए. अभी हम कॉन्सोनेंट से फिलअप करके वर्ड्स को कंप्लीट करेंगे. सो द फर्स्ट वर्ड इज okay, and this is the name of a vegetable. ये जो वर्ड बनेगा ये क्या है, ये वर्ड जो है वो एक वेजिटेबल का नाम है. ओके, सो व्हेन यू थिंक ऑफ द वर्ड कि क्या वर्ड होगा, आप सिर्फ वेजिटेबल्स के ही नाम सोचोगे, क्योंकि आपको पता है कि ये जो वर्ड है ये किसी वेजिटेबल का नाम है. Now think of the words, think of the vegetables which start with O. O से कौन कौन सी वेजिटेबल स्टार्ट होती है, तो मुझे तो सबसे पहले अनियन ही याद आता है O से. ठीक है ना, O से सबसे पहले मुझे अनियन याद आता है. सो O, let us see, O-N-I-O-N. The word is complete. O-N-I-O-N, that is onion. अनियन किसको बोलते हैं, अनियन इज प्याज. ओके, अनियन कौन सी वेजिटेबल है, प्याज. ठीक है, अनियन हम सब चीज में डालते हैं, सब चीज में नहीं, अधिकतर चीजों में अनियन डालते हैं. नेक्स्ट इज नाउ दिस इज द नेम of a Juicy, juicy fruit. Juicy fruit मतलब जिस फ्रूट में बहुत जूस होता है, बहुत रस होता है. Now this word is the name of a juicy fruit. अभी सोचो आप कौन सा वर्ड हो सकता है, कौन सा फ्रूट होगा. कॉमन फ्रूट्स होते हैं, एप्पल है, बनाना है, ऑरेंज है, मैंगो है. ठीक है, पीच है, पेयर है. इसमें से कोई भी वर्ड नहीं है. स्ट्रॉबेरी है. सो कौन सा वर्ड समझ में आ रहा है, जो फ्रूट्स के नाम है. दिस इज अ लॉन्ग नेम, लंबा नाम है. सो दिस वर्ड इज P-I-N-E-A-P-P-L-E. पाइन एप्पल. ठीक है, पाइन एप्पल. पाइन एप्पल जिसको हिंदी में कहते हैं अनानास. सबने अनानास देखा है ना. अनानास इज वेरी जूसी. पाइनएप्पल जो होता है उससे बहुत, व्हेन यू कट इट उसमें से बहुत जूस निकलता है. सो दिस वर्ड इज पाइन एप्पल. ठीक है, द थर्ड इज this word is the name of our national bird, and I'm sure you all know the name of our national bird. हमारा national bird क्या है, सबको मालूम है. Our national bird is peacock, मोर. So P-E-A-C-O-C-K. This word is peacock, our national bird. Then fourth is A. You have to fill in two consonants, and this is something. Birthday is incomplete without eating it. Birthday is incomplete without eating it. मतलब हमारी जो बर्थडे है इसको खाए बिना हमारी बर्थडे इनकम्प्लीट रहती है. नाउ
टेल मी, अब बर्थडे पे क्या चीज है जिसको हम कट करते हैं और सब लोग खाते हैं? दैट इज केक. किस बर्थडे, घर में किसी का भी बर्थडे होता है, हम लोग केक जरूर काटते हैं. सो दिस इज CAKE, केक. एंड फिफ्थ वर्ड इज okay, this is a musical instrument. It is a musical, musical, INSTRU instrument. It is a musical instrument. म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है कोई, हिंदी में जिसको बाजा बोलते हैं. ठीक है, कोई ये एक इंस्ट्रूमेंट का नाम है, किसी एक वाद्य, किसी एक बाजे का नाम है. अभी सोचो ये कौन सा वर्ड होगा, किससे स्टार्ट होगा? UI and A. You have to fill in 3 consonants. So this is, यहाँ पे म्यूजिक कॉन्सोनेंट, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट में क्या क्या हो सकता है जो कॉमन है? सितार है, एस सितार नहीं होगा, तबला नहीं है. दिस इज GUITAR, गिटार. ओके, इट इज अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, इट इज गिटार. ठीक है, सो दिस इज हाउ वी कैन complete the words by filling in vowels and consonants. Now next exercises, this is fun time. In this you have to complete the word ladder. You have to complete the word ladder with the help of picture clues. Now in this, अभी जो हमने 2 एक्सरसाइजेस की उसमें क्लूज दिए हुए थे, दैट मीन्स हेल्प दी हुई थी इन द फॉर्म ऑफ अ सेंटेंस, वर्ड के फॉर्म में हेल्प थी. यहाँ पे आपको पिक्चर देख करके कंप्लीट करना है. ठीक है, दिस इज WORD वर्ड, LADDER, वर्ड लाडर. ओके, now you have to see the picture and complete the word. ठीक है, first word starts with S. So what is this? Which animal is this? This is snake. SNAKE. Okay, this word ends with E. Now here, which word is it? Which picture is this? This is the picture of an egg. तो यहां से वर्ड लाडर बड़ी जैसे सीढ़ी होती है ना, ऐसे 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 ऐसे. सो E, देन दिस इज EGG, एग. नाउ नेक्स्ट इज, ठीक है, अभी दिस इज द पिक्चर ऑफ अ गोट. गोट मतलब बकरी. सो GOAT, गोट. नाउ नेक्स्ट इज, दिस इज द पिक्चर ऑफ, ये किस चीज की पिक्चर है? दिस इज द पिक्चर ऑफ अ टोमेटो. सो TOMATO, टोमेटो. नेक्स्ट वर्ड इज लाइक दिस. विच बर्ड इज दिस? दिस बर्ड इज एन आउल. सो OWL, आउल. आउल जिसको हिंदी में बोलते हैं उल्लू. उल्लू सब जानते हो ना, कहते हो ना उल्लू बनाया बड़ा मजा आया. सो आउल, आउल को बोलते हैं लोग, सिर्फ आप किसी को बुद्धू बनाते हैं तो हम बोलते हैं बुद्धू बनाया, उल्लू बनाया. बट आउल इज वेरी इंटेलिजेंट. आउल जो है बहुत इंटेलिजेंट बर्ड है. ठीक है, आउल के बाद देन नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट वर्ड इज, विच एनिमल इज दिस? दिस इज LION, लायन. ठीक है, जो बब्बर शेर होता है, जिसके मेन्स होते हैं. देन दिस इज द पिक्चर ऑफ अ नर्स. जब आप हॉस्पिटल में जाते हो तो डॉक्टर्स आर देयर, नर्सेज आर देयर, जिनको हम सिस्टर्स भी कहते हैं. तो दिस इज NURSE and E. Okay,
And last word is, this is the picture of a train का engine जो होता है. This is the picture of an engine. So last word is, I will write it here, E-N-G-I-N-E. So we have completed the word ladder, which is like this. ऐसे ऐसे सीढ़ी बनती है ना, ये हमने complete किया. So this is how you can complete the word by filling in consonants, by filling in vowels. Okay? So children, we have completed Unit 2 in grammar. Today I will stop here only since this unit is complete. Now, tomorrow in my next class, I will start new lesson. Okay children? So thank you so much for joining me, for attending the class. Thank you children.